Hello everyone, this is Meenakshi Gautam from Toppers Tutorial and we are going to do maths today. So as you can see on screen that our topic for today is number system. So I would like to tell you that we all know that maths is all about numbers. So that is why whenever we start studying maths, the first thing that we do is dealing with numbers. So number system is the first topic that we'll cover. So that is why this is the definition of number system. A number system is defined as a system of writing to express numbers. So whenever we have to write numbers or we have to keep a count of certain things, we always use numbers for the same thing. So that is why number system is used. So the first thing that we do regarding numbers is comparing numbers. So whenever we compare two numbers, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर, देर आर फ्यू स्टेप्स दैट वी फॉलो बिफोर कंपेयरिंग नंबर. सो फर्स्ट ऑफ द स्टेप इज़ वी काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे. तो जिसकी भी नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है, दोनों में से जिस भी नंबर की नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है वो नंबर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा. एज वी कैन सी ऑन स्क्रीन दैट देर आर this is an exercise given that there are two numbers given in the first point, 203615,589 and the second one is 659,76456. As we can see that the number on the left hand side has greater number of digits, so automatically that will be the greater number. So this is the first thing that we check before comparing two numbers. Next is if the number of digits is same, what do we do in that case? अगर number of digits same है तो हम कैसे करेंगे compare उनको? तो we will compare the digits from the leftmost place until we come across unequal digits. यानी कि जो leftmost place है, आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा 514 और 298. तो leftmost place पर जो digit है 514 में 5 है और 298 में 2 है. तो 5 और 2 को कंपेयर करेंगे, जो भी नंबर बड़ा होगा, जो भी डिजिट बड़ी होगी, वो नंबर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा. तो 5 और 2 में से 5 इज़ द ग्रेटर डिजिट देन 2. So 514 is the greater number than 298. This is how we compare. And if the first digit of both the numbers are same, then we compare the next digit. If that is also same, then we compare the next digit, but the criteria remains the same. This is the question, this is the exercise for you, and you can do it on your own. Next is forming numbers. Forming numbers यानी कि numbers बनाना. How can we form numbers? Whenever we are asked to form numbers, जैसे कि greatest number बनाना है या smallest number बनाना है और हमें certain digits given है, तो हम कैसे form करते हैं? तो अगर हम greatest number बना रहे हैं तो what we do actually is greatest number is formed by arranging the given digits in descending order. हम जो given digits है, जो digits हमें दी हुई हैं, उन्हें descending order में लिख देंगे. descending order यानी कि सबसे बड़ी digit सबसे पहले, यानी कि लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट में, लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर, देन उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा लास्ट में. ऐसे हमारा ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो जाता है. और इसी का उल्टा यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे डिजिट्स को व्हेन वी आर फॉर्मिंग द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स, वट एवर द डिजिट्स आर गिवन. देर आर डिजिट्स गिवन इन द क्वेश्चन एज वी कैन सी ऑन स्क्रीन 9, 3, 7 and 5. So these are the 4 digits given and we are supposed to find the greatest and the smallest number. So for greatest number, it is already written there that we have to arrange all the given digits in descending order. So the greatest digit, that is 9, will be on the leftmost place, then 7, then 5 and then 3. That is 9753 is the greatest number that we can form using these 4 digits. In the same way, smallest will be 3, 5, 7, 9. We arranged all the digits in ascending order. Then 3579 is the greatest number that can be formed using the given 4 digits. So I hope this concept is clear to you. We just have to keep in mind how to arrange the numbers in ascending or descending order. This is the question for you and I hope you will be able to do this question on your own.
Next is these are the new terms that we may come across when we are dealing with numbers. So this is the first one is face value. What is face? Face is this that we see. Okay, इसके पीछे क्या है we don't know. तो when we talk about numbers, face is the number, the digit that we see. हमें नहीं मतलब कि वो किस प्लेस पर है, हमें उससे अभी कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि वो फेस उस डिजिट का क्या है. फॉर एग्जाम्पल इन द नंबर 57892 हमें 2 की अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 2 की फेस वैल्यू हमें 2 दिख रहा है, हमें दिख क्या रहा है 2. अभी हम उसको प्लेस नहीं देखेंगे कि वो किस प्लेस पर है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस. तो 2 की फेस वैल्यू होगी 2 जो हमें दिख रहा है, 5 की प्लेस वैल्यू 5, 7 की प्लेस वैल्यू 7. सो द फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इज़ द डिजिट इटसेल्फ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस. यानी कि उसकी जो प्लेस है, प्लेस वैल्यू चार्ट में उसका जो प्लेस है, हम उसको इग्नोर करके जो भी डिजिट हमें दिखेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू. नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू इज़ बेसिकली जब हम फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं तो फेस वैल्यू होती है उसकी जो हम दिख रहा है, प्लेस होता है जिस प्लेस पर वो है, जैसे कि 1, 10, 100, 1000. वी ऑल नो अबाउट प्लेस वैल्यू चार्ट. तो जो भी प्लेस पर वो है अभी मल्टीप्लाई बाय उसकी फेस वैल्यू. दैट इज़ अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें 2 की फेस वैल्यू 2 थी और उसका फेस वैल्यू थी 2 और उसका प्लेस क्या है सॉरी उसका प्लेस क्या है, टेंस. 1 टेंस प्लेस पर है वो. तो टेंस प्लेस पर जब वो है तो 1 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी फेस वैल्यू यानी कि 2 को. तो 2 × 10 इक्वल्स टू 20. 20 इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर 78924. अगेन अनदर एग्जाम्पल इज गिवन हेयर 45379. 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, प्लेस वैल्यू इज़ 3, उसका प्लेस है 100. तो 3 × 100 इक्वल्स टू 300. दिस इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 45379. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज एक्सपैंडेड फॉर्म. एक्सपैंड का मतलब होता है उसको खोल के लिखना, ठीक है. तो एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, जितने भी डिजिट्स हैं उस नंबर में हम सबकी पहले प्लेस वैल्यू निकालेंगे और सबको एज अ सम ऑफ प्लेस वैल्यू लिख देंगे. सो एक्सपेंडेड फॉर्म इज़ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स प्लेस वैल्यू, यानी कि प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स. उनकी जितनी भी डिजिट्स हैं सबका प्लेस वैल्यू का सम लिख देंगे एज वी कैन सी ऑन स्क्रीन. तो we found out the place value of all the digits, then we wrote it like this as a sum of all the digits. Okay, these questions are for you. I hope you'll be able to do these questions on your own. Indian numeration system. So basically Indian numeration system was used in the subcontinent to express large numbers like lakhs, crores. These numbers are generally used as in Indian numeration system. And use of separators or commas. तो कॉमास किस हिसाब से लगते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम. तो हम क्या करते हैं, पहले राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट्स काउंट करते हैं, देन वी पुट 1 कॉमा, देन आफ्टर एवरी 2 डिजिट वी पुट अ कॉमा. दिस इज़ हाउ वी पुट कॉमास और सेपरेटर्स according to Indian system of numeration. For example like this. So we saw the digits like 310, 013 and then we put comma. After that we put comma after every 2 digits. After every 2 digits we put a comma. Next is international system of numeration. In international system we start grouping the numbers from right in group of 3 and called periods, and we put comma or space after each period to make the number easily readable. क्या होता है कि हम after every 3 digit, it's the easiest of all, हम हर 3 digits के बाद comma put करते हैं according to international system of numeration. As we can see in the example given, we put comma after every 3 digits.
This is the place value chart of Indian system of numeration. Ones, tens, hundred. From right to left we are going. Ones, tens, hundred. This is called as ones. Period का name है ones. Then thousand, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crores, 10 crores. And we can see that there are 3 different partitions under one single partition. So this single partition is where we put comma. Okay, पहले 3 digits के बाद, then after every 2 digit. दिस इज इंडियन प्लेस इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. 1, 10, 100, 1000, 10,000, यहाँ तक तो इंडियन में भी था. उसके बाद 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. दिस इज हाउ वी राइट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. दिस इज हाउ वी राइट नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. ये प्लेस वैल्यूज हैं ऑफ ऑल द डिजिट्स. ओके, as we can see the examples given in the table, the commas that we have put here is after every 3 digits. These are the examples. तो अगर आपको ये नहीं दिया गया है whether the numbers are written in Indian system according to Indian system of numeration or international, ये आप खुद से भी पता लगा सकते हैं by just checking out the commas. जिस तरीके से कॉमा लगा हुआ है उस तरीके से वी कैन फाइंड आउट वेदर द नंबर इज़ रिटन इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल. तो फर्स्ट वाले में पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगा, उसके बाद आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स दे पुट अ कॉमा. दैट मीन्स इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज़ गिवन हियर. उसके बाद सेकेंड वाले में हर तीसरे डिजिट के बाद कॉमा लगा है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम है. तो हम उस तरीके से उसको वर्ड्स में लिखेंगे. दिस क्वेश्चन इज अगेन फॉर यू ऑल. एस्टिमेशन इज़ बेसिकली राउंडिंग ऑफ, यानी कि जब भी आपसे पूछा जाए, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, और आपसे पूछा जाए कि आपकी क्लास में हर बच्चे का एवरेज वेट कितना है, तो आप नहीं बता सकते हो बिकॉज आपको हर बच्चे का वेट नहीं पता. बट आपको पता है कि किसी का 38 होगा वेट, किसी का 40 होगा, किसी का 42 हो सकता है. तो हम ऑन एन एवरेज एक एस्टिमेट दे देते हैं दैट वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर अराउंड, यानी कि अराउंड का मतलब होता है राउंड ऑफ, यानी कि 40 kg के आसपास है. या तो किसी का 38 होगा, 42 होगा, या 40 भी हो सकता है, 43 हो सकता है. तो इसको हम एक राउंडेड ऑफ फिगर दे देते हैं. 40 kg वेट होगा हमारी क्लास 5th के स्टूडेंट्स का वेट होगा 40 kg. सो दिस इज़ हाउ वी राउंड ऑफ. ओके, अब आपकी पॉकेट में यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन योर पॉकेट बट यू डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट. बट आपको पता है कि आपने 1000 रुपीज़ आप लेके निकले थे, बट आपने कुछ शॉपिंग करी है इतने रुपीज़ के अराउंड, 190 180 के अराउंड. तो आप बोल सकते हो कि आई हैव रुपीज़ 800 इन माई पॉकेट. तो आप राउंड ऑफ कर दोगे क्योंकि आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता. सो दिस इज़ वाई वी राउंड ऑफ और वी एस्टिमेट सर्टेन थिंग्स. सो देयर आर सम रूल्स रिगार्डिंग द एस्टिमेशन. जब भी हम एस्टिमेशन करते हैं कुछ रूल्स होते हैं उसके, जिस वजह से जिनको यूज़ करके हम बहुत ही आसानी से राउंड ऑफ या एस्टिमेट कर सकते हैं नंबर्स को. फर्स्ट वन इज़ फाइंड द डिजिट इन द प्लेस वी वांट टू राउंड ऑफ. यानी कि अगर आपको नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है तो 100th प्लेस पर जो डिजिट है पहले हम उसको देखेंगे कि वो डिजिट क्या है. ठीक है, उसको हम अलग कर लेंगे. उसके बाद उसके राइट हैंड साइड पे एग्जैक्ट राइट में जो डिजिट लिखी हुई है, कोई भी हो सकती है वो, हम उसको लेंगे. सेकेंड स्टेप में वही दिया है, उसको लेंगे. देन दैट डिजिट डिसाइड्स द नंबर दैट विल बी राउंडेड ऑफ. तो हम उस डिजिट को देखेंगे एज वी कैन सी इन द स्टेटमेंट्स रिटन इन रेड कलर. इफ़ द डिजिट टू द राइट इज़ 0 to 4, यानी कि 0 1 2 3 4 अगर डिजिट्स हैं तो वो हमारा नंबर जो है वो नेक्स्ट डिजिट पर चला जाएगा. अगर 0 to 4 है तो वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा. और अगर 5 to 9 के बीच में है वो डिजिट तो वो हमारा नेक्स्ट पर राउंड अप हो जाएगा, यानी कि +1 कर देंगे हम. दैट नंबर विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, +1 कर देंगे और वो हमारा नंबर राउंड ऑफ हो जाएगा. फाइनली वी रिमूव द एक्स्ट्रा डिजिट्स दैट हैव नॉट बीन राउंडेड ऑफ, यानी कि जो राउंड ऑफ नहीं हुई हम उसको रिमूव कर देंगे. हियर इज़ एन एग्जाम्पल गिवन. 354 टू नियरेस्ट टेंस. 354 को नियरेस्ट टेंस में करना है. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि जिस भी नियरेस्ट डिजिट में हमको करना है पहले हम वो डिजिट देखेंगे. तो नियरेस्ट टेंस में 10th प्लेस पर 5 है, 5 के राइट में यहाँ पर 4 लिखा हुआ है. तो 4 को हम कंपेयर करेंगे. 4 हमारा 5 से छोटा होता है तो 5 जो है वो 5 ही रहेगा, हम उसको 1 से इंक्रीज़ नहीं करेंगे और 4 को हम 0 बना देंगे. तो 350 इज़ द नंबर दैट इज़ राउंडेड ऑफ टू एज नियरेस्ट टेंस.
नेक्स्ट इज़ 1759 टू नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 100 में करना है तो 100 प्लेस पर जो डिजिट है यानी कि 7 इज़ एट 100 प्लेस, हमें वो देखना है कि वो 7 रहेगा या वो इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा। तो उसके राइट में जो डिजिट है जो कि 5 है, और हमारा रूल था कि अगर वो डिजिट 5 या 5 से 9 के बीच में कोई भी डिजिट होगी तो वो हमारा नेक्स्ट पर चला जाएगा यानी कि 7 का 8 बन जाएगा। तो 1800 हमने बना दिया। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट इज़ नियरेस्ट 1000। सेम कंसेप्ट रहेगा। 1000 प्लेस पर जो डिजिट है यहाँ पर वो है 8, और 8 के राइट में 3 लिखा हुआ है, तो 3 जो है वो 5 से छोटा होता है, तो ऑब्वियसली जो 8 जो है वो 8 ही रहेगा, हम उसको 9 नहीं बनाएंगे और रेस्ट ऑफ द डिजिट्स को हम 0 बना देंगे। 78,000 इज़ दी करेक्ट आंसर। योर टर्न। राउंड ऑफ 6, 7, 4, 5, 2, 8, 9 टू नियरेस्ट टेंस 100 एंड 1000। यहाँ पे आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस 100 और 1000 में। आई होप यू विल बी एबल टू डू दैट ऑन योर ओन। These are Roman numerals. So there are limited set of Roman numerals that we are given with. Rest of the numbers we have to find out, we have to frame, we have to form the numbers, and there are certain rules regarding the same. I guess बहुत easy हो जाता है फिर तो rules जानने के बाद। तो first one is my dear cat loves extra vanilla ice cream. This is how we know that these are the only Roman numerals that are given to us. Rest of the numbers, rest of the Roman numerals we have to form on our own. So M is for 1000, D is for 500, C is for cat, as we can see that they all are arranged in descending order. L is for 50, X is for 10, V 5, I 1. तो ये सिर्फ इतने ही हमारे पास सेट ऑफ रोमन न्यूमरल्स हैं। बाकी के रोमन न्यूमरल्स, बाकी के हिंदू और अरेबिक नंबर्स के लिए रोमन न्यूमरल्स हमें फ्रेम करने पड़ते हैं, फॉर्म करने पड़ते हैं। रूल्स वी विल डू फर्दर। So first rule is when a smaller symbol is written after greater symbol it's added, यानी कि एक smaller सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम x और v को ले लेते हैं, तो v जो है 5 होता है वो स्मॉलर हो गया x से, 10 से छोटा होता है 5। तो अगर वो x के राइट में लिखा हुआ है तो यानी कि वो ऐड हो रहा है, और इसी का वाइसा वर्सा होगा अगर वो लेफ्ट में लिखा है दैट मीन्स वो माइनस हो रहा है उसमें से। ठीक है, तो 2 रूल्स तो यही हो गए। अगर एक छोटा रोमन न्यूमरल बड़े रोमन न्यूमरल के राइट में लिखा है दैट मीन्स वो ऐड हो रहा है, और अगर लेफ्ट में लिखा है दैट मीन्स इट इज़ गेटिंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। Rule number 2 is if a symbol comes after itself it's added. Obviously if a symbol is repeated यानी कि x लिखा है अगर that means वो ऐड हो रहे हैं दोनों, x plus x यानी कि 10 plus 10 is 20, तो वो ऐड हो जाएगा। थर्ड रूल जो मैंने आपको अभी बताया, इफ़ अ स्मॉलर सिंबल इज अपीयर्स बिफोर अ ग्रेटर सिंबल इट इज़ सब्ट्रैक्टेड। अगर एक स्मॉलर सिंबल ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट में लिखा है तो वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन हियर आई एक्स, तो आई जो है वो स्मॉलर होता है x से, 1 की वैल्यू 10 से छोटी होती है, तो यानी कि अगर वो लेफ्ट में लिखा है तो वो माइनस हो रहा है, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो 9 आ जाएगा। यानी कि व्हाट इज़ द रोमन न्यूमरल फॉर 9, दैट इज़ आई एक्स। रूल नंबर 4, द सेम सिंबल कैन नॉट बी यूज मोर देन 3 टाइम्स इन अ रो, यानी कि आप 3 बार से ज़्यादा किसी भी रोमन न्यूमरल को रिपीट नहीं कर सकते हो। यानी कि 30 के लिए वी कैन राइट x x x, बट 40 के लिए वी कैन नॉट राइट x x x x, 4 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं, उसको हम 50 - 10 लिखेंगे यानी कि XL लिखेंगे। नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग रोमन न्यूमरल्स टू डिजिट्स, यानी कि आपको रोमन न्यूमरल दिया हुआ है, आपको उसको हिंदू और अरेबिक नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम सभी रोमन न्यूमरल्स की वैल्यू लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर M D C X L I, सबकी हमने वैल्यू लिखी। अब आप देखिए वेदर ऑल द रोमन न्यूमरल्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर और नॉट, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगे हुए हैं क्योंकि 10 और 50 जो है वो 10 पहले आया है, 50 बाद में आया है। तो जब 50 के लेफ्ट में 10 लिखा है, हम सबको पता है हमारा रूल नंबर 3 यही था कि 10 जो है 50 से छोटा है और वो लेफ्ट में लिखा है, दैट मीन्स 10 इज़ गेटिंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50, तो हम जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 50 में से। रेस्ट ऑफ ऑल द नंबर्स विल बी एडेड, बाकी सबको हम ऐड कर देंगे, यानी कि 1000 + 500 + 100 + 50 - 10 + 1, दिस इज हाउ वी राइट इट।
as we can see here 1000 plus 500 plus 100 plus 50 minus 10 plus 1. अब हम सबको पता है कि 10 माइनस क्यों हुआ, हमने रेड से उसको पिंक से हाईलाइट किया है क्योंकि 10 जो है वो 50 से छोटा होता है और वो उसके लेफ्ट में लिखा है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा ऑटोमेटिकली. सो हमारा रोमन न्यूमरल क्या आया 1000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 1 यानी कि 1641. सो हिंदू अरेबिक नंबर फॉर MDCXLI इज़ 1641. कन्वर्टिंग डिजिट्स टू रोमन न्यूमरल्स यानी कि अब हमें हिंदू अरेबिक नंबर दिया है उसको हमें रोमन न्यूमरल में करना है. सेम कंसेप्ट रहेगा, बस हम रिवर्स में जाएंगे यानी कि पहले हम गिवन रोमन न्यूमरल को ब्रेक करेंगे. 2342 को 2000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 2. ठीक है, तो 2000 को वी विल फर्दर ब्रेक एज 1000 प्लस 1000 एंड 300 विल ऑल्सो बी फर्दर ब्रोकन एज 100 प्लस 100 प्लस 100. तो 1000 plus 1000 is MM, 100 plus 100 plus 100 is CCC. अब 40 जो है उसको हम कैसे लिखेंगे 50 माइनस 10, ये मैंने आपको बताया था 50 माइनस 10 हो जाएगा और 50 माइनस 10 इज़ XL और 2 जो है उसको हम 1 प्लस 1 यानी कि I करके लिखेंगे. तो हमारा रोमन न्यूमरल फॉर 2342 इज़ MMCCC XLII. This is how we convert a Hindu Arabic number into Roman numeral. This is your turn. You all should be able to do these questions on your own. So that's all for today, and I hope you all enjoyed it, and I hope to see you all in the classroom where we will learn more topics of maths in a very fun manner. Okay, so bye bye, see you in the classroom.